So when we are to calculate the mean by using direct method, we need to calculate the class mark, that is xi, and the formula is upper limit plus lower limit divided by 2. तो आप इसका कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि अपर लिमिट यहाँ पे कितनी है 2, लोअर लिमिट इज 0, एडिंग बोथ तो आपके पास कितना आएगा 2/2, दिस विल बी 1. नेक्स्ट आपको जब कैलकुलेट करनी है तो आपके पास कितना आएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, आपके पास कितना जाएगा 3. तो आप सब्सिक्वेंटली ऐसे आगे अपनी यू कैन जस्ट कैलकुलेट ऑल योर क्लास मार्क्स और द मिड पॉइंट्स. Or what else you can do, as you can see that the class size of all the intervals are same, 2, the difference is 2. So basically you can add 2 to the previous class mark, that 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 2 9, 9 plus 2 11, 11 plus 13. So you can get like this, or you can just simply add the upper limit and the lower limit. So 14 plus 12 will be 26, 26 by 2 you will get 13. The next column is basically you have to multiply fi into xi. So this one, the frequency column is basically your fi and the class mark is your xi. So simply multiply this. 1 into 1 1, 2 into 3 6, 1 to 5 5, 5 into 7 35, 6 into 9 54, 2 into 11 22, 3 into 13 39. So adding all this, because this sigma means you need to add this column, sigma or the summation mean you need to add all the entries in this column. So this will be 162. Okay, so now using this formula, that mean is basically sigma fi xi by sigma fi. So now the sum of this all column sigma fi xi is 162. Sigma fi is basically sum of all the frequencies. This is sigma fi, this is 20 when you will divide. So the mean for the observations will be 8.1. Now we'll move forward towards the next question. This is basically your question number 5, and in the previous sum we did find the mean by the direct method. In this sum we will calculate the mean by assumed mean method. So before we start with, we must discuss the formula that the mean in assumed mean method is given by a plus summation fi di over summation fi. So we are clear with this term that summation fi is total number of frequencies, and we do know here that the total number of frequencies with us is 400. Okay, so the new thing over here that we need to learn is basically a, and a is the assumed mean. Next is fi di. So fi di is a new column. तो इसके अंदर आपको क्या करना है, you are to find the product of fi into di. So what is di basically? तो di is calculated by xi minus a. तो I'll tell you how to do this, how to convert this. So before we start, it is really mandatory for us, as you can see that this type of grouped data is not continuous. 52 के बाद 53 आ रहा है. बेसिकली होता क्या है कि अपर लिमिट एंड द नेक्स्ट लोअर लिमिट हैज़ टू बी सेम, बट एज दिस डाटा इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इसको कॉन्टिन्यूस करने के लिए व्हाट वी आर सपोज टू डू, जो आपके पास लोअर लिमिट वाली साइड है, द साइड विद द लोअर लिमिट इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड द साइड विद द अपर लिमिट, ठीक है, इन द अपर लिमिट्स वी आर टू ऐड 0.5. सो नाउ वील राइट दिस डाटा अगेन. सो क्लास इंटरवल, देन विल हैव द फ्रिक्वेंसीज, और आगे जो सम करना है विल गेट टू नो कि क्या क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है. दिस विल बिकम 49.5, दिस विल बिकम 52.5. नेक्स्ट इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बिकम 52.5. अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 55.5. सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम हेयर यू विल गेट 55.5. इधर अपर लिमिट में ऐड करेंगे 58.5, सब्ट्रैक्टिंग 58.5, एडिंग 0.5 61.5, अगेन सब्ट्रैक्टिंग 61.5, adding this will be 64.5. So the frequencies are 15, 110, 135, 115, 25 and the total is 400.
ठीक है। अब आपको अगेन यू आर टू कैलकुलेट द क्लास मार्क। तो जैसे लास्ट सम में कैलकुलेट किया था वैसे इसके अंदर करेंगे। तो क्लास मार्क इज बेसिकली कैलकुलेटेड बाय अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो इफ़ यू विल ऐड देम यू विल गेट 102 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी 51। नाउ यू कैन सी आपके पास क्लास साइज जो है सब में सेम है, दैट इज़ 3 का क्लास साइज जो है आपका चल रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस सब में 3 का डिफरेंस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3। तो आप सब में 3 ऐड कर सकते हो। 51 प्लस 3 विल बी 54 प्लस 3 विल बी 57, देन इट विल बी 60 एंड देन इट विल बी 63। तो अभी जो सम जो है, ठीक है, वी आर टू कंप्लीट दिस सम बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। तो बेसिकली होता है जो क्लास मार्क वाला जो आपके पास कॉलम होता है, द कॉलम विद द क्लास मार्क, इसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू को आप अज्यूम्ड मीन ए मान लो। कभी कभार क्या होता है कि आपके पास 2 मिडिल टर्म्स बन जाती हैं, आप किसी को भी अज्यूम्ड मीन मान सकते हो। इट्स नॉट मीन मतलब कि कुछ गलत नहीं होएगा। अज्यूम्ड मीन मानने को चाहे फर्स्ट वाले को मान लो चाहे लास्ट वाले को मान लो, यू विल स्टिल गेट योर आंसर्स। नेक्स्ट कॉलम में आपको फाइंड करना है डी आई, दैट इज़ बेसिकली एक्स आई माइनस ए। मतलब हर एक क्लास मार्क को आपने अज्यूम्ड मीन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्लास मार्क माइनस अज्यूम्ड मीन वो आपके पास कितना है 57। तो यहाँ पे देखो 51 माइनस 57 ये कितना जाएगा -6, 54 माइनस 57 ये कितना जाएगा आपके पास -3, 57 माइनस 57 ये कितना आएगा 0, 60 माइनस 57 कितना जाएगा 3, 63 माइनस 57 यहाँ पे कितना जाएगा 6। तो ये आपके पास डी आई की वैल्यू आ गई है -6 -3 0 3 6। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट अनदर कॉलम दैट इज़ एफ आई इंटू डी आई। एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कराना है। तो 15 इंटू -6 विल बी -90, 110 इंटू -3 विल बी -110, 135 इंटू 0 विल बी 0, 115 इंटू 3 विल बी 345 एंड 25 इंटू 6 विल बी 150। अब नेगेटिव्स को अलग से ऐड कर लो और इसको सारा जब आप करोगे सॉल्व, ठीक है, यू विल गेट एज जस्ट 75। इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा 75। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द मीन। तो मीन का फॉर्मूला था अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। एज्यूम मीन आपके पास कितना था 57, एफ आई डी आई कितना आया है 75, टोटल कितना था आपके पास 400। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई वुड से कि आप पहले इसको डिवाइड करके डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लो। यू विल गेट 57 प्लस 0.19, सो योर मीन विल बी 57.19 फॉर दिस पर्टिकुलर डाटा। ओके, तो नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट सम। So we have this data with us and this we are supposed to find the mean, and we will find the mean by using step deviation method. So I would say that this step deviation method is the most easiest one. तो इसके अंदर चाहे आपका एक स्टेप ज़्यादा इंक्लूड होता है लेकिन बहुत ईजी है। इसका फॉर्मूला जो है दैट इज़ a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो a जैसे आपको पता है दैट इज़ द अज्यूम्ड मीन, सिग्मा एफ आई पता है इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो व्हाट इज़ बेसिकली h इज़ द क्लास हाइट एंड इट इज़ कैलकुलेटेड बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। व्हाट इज़ एफ आई यू आई? तो एफ आई तो आपके पास प्रोडक्ट इनटू यू आई करना है। तो यू आई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यू आई इज़ कैलकुलेटेड बाय एक्स आई माइनस ए बाई एच। लेकिन इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग इन दिस टॉपिक इज़ दैट यू डू नॉट नीड टू कैलकुलेट यू आई। ये सिंपल नंबरिंग से हो जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड, द मोस्ट ईजिएस्ट मेथड। कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा कम और ईजी भी सबसे ज़्यादा। तो बिफोर वी स्टार्ट, ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट इज़ एक्स आई। एक्स आई तो कैलकुलेट करना है, दैट इज़ द मिड पॉइंट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, या आपके पास आ जाएगा 0.02। फिर उसके बाद आपके पास डिफरेंस क्लास साइज सब में सेम है 0.4 का, ठीक है, 0.004। तो आप इसमें 0.004 ऐड करो, दिस विल 0.06, 0.10, 0.14, 0.18 और ये कितना जाएगा आपके पास 0.22 आपके पास ये आ गया, ठीक है।
तो अगर मैं कहूँ कि आपको अज्यूम्ड मीन पिक करना है तो इसकी मिडिल वैल्यू, अब देखो आपके पास दो मिडिल टर्म्स आ रही हैं, एक ये भी मिडिल टर्म हो सकती है, ये भी मिडिल टर्म हो सकती है, तो इट्स योर चॉइस, आप किसी को भी पिक कर लो। सपोज मैंने इसको अज्यूम्ड मीन मान लिया, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट कॉलम के अंदर यू आई कैलकुलेट करना है, बस आप फॉर्मूला लिख दो, एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन कितना था 0.10 बाय एच, और यहाँ पे जो आपके पास डाटा है अगर आप यहाँ पे एच कैलकुलेट करते हो, एच इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कोई सी भी आप सबसे पहले वाले को जो भी चाहे देख लो, चाहे सबसे लास्ट वाले से निकालो, यू विल गेट द सेम आंसर, दैट विल बी 0.04. सो यू विल राइट 0.04. सो व्हाट इज़ द शॉर्टकट इन दिस, व्हाट इज़ द ईजिएस्ट थिंग इन दिस, कि जो आप अज्यूम्ड मीन कैलकुलेट करते हो ना, जिसको मानते हो, जिसको अज्यूम करते हो, लेट अस उसके आगे क्या लिख देना है 0, और आगे कर दो काउंटिंग पूरी, 0 के बाद 1, फिर 2 और फिर 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2. ओके, सो इन द नेक्स्ट कॉलम कैलकुलेट एफ आई इंटू यू आई, मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज को यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी -8, दिस विल बी -9, 0, 2, 8, 6. तो इफ़ यू ऐड ऑल दीज आपके पास ये कितना जाएगा -1, दिस इज योर सिग्मा एफ आई यू आई. नाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट मीन, सो मीन इज गिवन बाय ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच. अब आपके पास अज्यूम्ड मीन कितना है, कितना अज्यूम किया था, दैट वाज 0.10, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया -1, सिग्मा एफ आई कितना आया 30, और आपके पास एच जो है दैट इज़ 0.04. तो आपके पास इतना जाएगा 0.10 माइनस 0. इसको सॉल्व करोगे 0013. पहले तो आप इन दोनों को डिवाइड करके सॉल्व कर लो. सॉल्विंग दिस विल गेट 0.0987 एज योर मीन. ओके, तो आई वुड से कि आपके पास जो स्टेप डेविएशन मेथड जो है इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वन. तो नाउ विल कम टू वन सम जो सबसे ज़्यादा अलग है, ठीक है.